understand the importance of this particular topic. And given the fact that many of you have not studied maths in class 11th, we need to do functions from the basics actually. I can't jump to take up the difficult ones, the ones which have appeared in exams. If you have gone through the questions which have come in the CAT, you will see that it requires, JE level approaches. So I really don't understand why these people have given so much of significance and the difficulty level of this particular topic. Why have they increased it so much? But it is, you know, the hard fact. We have to accept that. Still, I assure you, after going through the 4 sessions, you will feel far comfortable with functions as you are today. So with a positive note, let us begin the session. I have already started the recording. Others can follow in case they are joining late. If it is good to go, everybody write OK. Everybody write OK. OK means you can see the screen, all set, and you want me to start. That's good. All right. So, just a moment. Okay. So when we say functions, the prerequisite to do this particular topic is set theory. Nowhere in any institute people will teach you set theory. They will expect that you know set theory. However, we have given one class on set theory, that is yesterday. I would reiterate that there is no need to look for the theory part of sets and then solve questions specific to set. Leave it as to whatever I have discussed. That is enough, because those things will be required when we do functions. So they are the building blocks. They are the ABCDs of the functions. Going ahead, so write down the topic, functions. So when we say what is this function, before that we have to understand something called cross product. So write down cross product of two sets. थोड़ा theoretical होगा आज का class, but remaining 3 classes will be full of questions. People, what is the meaning of cross product? Suppose set A is Ankit, Disha. Set B is containing 1, 2. So there is a way of representing the two sets that is called mapping. Okay, so I can write that this is set A. So let me not take Ankit because A same हो जा रहा है. So let me take Sarabjit. Okay, Ankit mind नहीं करना, ठीक है? Okay, so this is set A. This is set B. तो set A में देखो सरबजीत है, set A में दूसरा एलिमेंट दिशा है, और सेट B में 1 है और 2 है. तो इसको हम कहते हैं there is a set from A to B. What is the cross product of A and B? तब क्या होता है, इसको एक कर्ली ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, एंड सरबजीत मैपिंग विथ 1, सरबजीत मैपिंग विथ 2, then Disha mapping with 1, Disha mapping with 2. This is the mapping diagram of the cross product. I can also write the cross product in roster form, and that can be written as S comma 1 comma S comma 2 comma D comma 1 comma and D comma 2. So you have seen that A cross B मतलब A के elements पहले होंगे and then B के elements होंगे. If somebody is asking me to write B cross A, then I will write, I think the arrow will change. The arrow will change in the sense 1 से S पे, 1 से D पे, 2 से S पे and 2 से D पे, something like this. So I would write in that case 1 comma S comma 2 comma S comma 1 comma D comma and 2 comma D.
I hope you understand a very significant thing, that A cross B is actually not always equal to B cross A, because S comma 1 is a different element and 1 comma S is another element. So there are two things you have learned. What is the meaning of cross product? Second, the cross products may not be same, because the position, this is the x-axis value, this is the y-axis value, something like that. So when you plot it on the graph, so set A will be on the x-axis, set B will be on the y-axis, then S comma 1 will be 1 point. This is called graphical representation of the cross product. Anyway, we don't have to go so much deep into this. So if you have understood A cross B, B cross A, write OK. OK means you have copied. You don't want me to repeat anything. Wonderful. Pretty easy topic so far. Karthik, you there? Can you hear me? Ankita? Yes, sir. Yeah. So you understood A cross B. Let me give you one simple example to actually understand it further. Suppose set A is 1 comma 2. Somebody is asking you the value of A cross A. Tell me, प्लीज आप अपनी नोटबुक में लिखो ए क्रॉस ए में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1. दूसरा लिखो क्वेश्चन नंबर 2, ए क्रॉस ए में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे. क्वेश्चन नंबर 3, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस ए लिखो. क्वेश्चन नंबर 4, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस ए. A very simple question to illustrate the cross product. Giving you just 1 minute, make it fast. Your time starts now. People do not take much time in these basic things. These are the building blocks for functions. These questions are not asked. सर Yes. ए क्रॉस ए में क्या कैसे होगा सर? हाँ चल कोई बात नहीं, आगे करो 1 मिनट पार होने दो, फिर मैं समझाता हूँ. 40 seconds more. Yes, Abhishek, you there? Very good. So we have done a very simple thing, that is cross product. Okay. Others, please finish it. Yeah, your Sir, time is up. Yes, Ankit, bolo. Yes. ना मतलब का सेट तो बन सकते हैं ना? हाँ वही होगा, वो 3 डायमेंशन होता है एक्चुअली. ये 1 कॉमा 2 होगा, दूसरा होगा 1 कॉमा 1 भी तो होगा, स्टार्टिंग विथ 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, देन 2 कॉमा 1, देन 2 कॉमा 2, राइट. दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट. अंकित, सॉरी कार्तिक एंड अभिषेक, यू केम लेट. क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करना है, जैसे एस डी है 1 2 है, तो एस का 1 के साथ और एस का 2 के साथ, डी का 1 के साथ, डी का 2 के साथ, बस इसी तरीके से ये कर लो, 1 का 1 के साथ एंड सो ऑन. I think the next this one, cardinal number of this will be 1 2 3 4 elements are there, so I'll write 4. Now when it comes to a cross a, I already have this a cross a over here. आप देखो इसमें 4 एलिमेंट है और यहाँ पे 2 है. तो if you are with me, I think इसका मैपिंग होगा 1 के साथ, इसका मैपिंग 2 के साथ, फिर इसका मैपिंग 1 के साथ, इसका मैपिंग 2 के साथ, and so on, right? So write down 1 comma 1 comma 1 is one element, 1 comma 1 comma 2 is another element, फिर इसका मैपिंग 1 के साथ 1 comma 2 comma 1, 1 comma 2 comma 2, right? then इसका मैपिंग इसके साथ 2 comma 1 comma 1, 2 comma 1 comma 2, correct? 2 comma 2 comma 1 and 2 comma 2 comma 2, and the bracket close. How many elements are there? 1 2 3 4 5 6 7 8.
So what is the cardinal number of A cross A? And the answer is 8. Sir, it looks pretty simple that cardinal number of A cross B is nothing but, I mean, you can write it here. Cardinal number of A cross B is nothing but cardinal number of A multiplied by cardinal number of B. अभी तक आप देखो यही हुआ है. Aryama, is that okay? Right, okay, if you guys have understood this. Make it fast. Any doubt? Ask me. Everybody should not sit idle. Very good. All right. चलो, बहुत अच्छा. Now, let us go ahead. Write down the next one, relations. In order to understand functions, you should understand relations little bit. Okay. People, just now you saw that we wrote A cross B. You remember, एक तरफ A cross B लिखो, Sarabjit, 1, Sarabjit, 2, Disha, 1, Disha, 2. This was A cross B. Okay. Now, when I talk about relations, it can be understood like this. Suppose set A में सरबजीत है, दिशा है और कार्तिक है, ठीक है, और सेट B में you know 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, something like that. अगर मैं एक रिलेशन ये करता हूं A क्रॉस B नहीं, अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं, क्या लिखता हूं जी? S, 1, दिशा, 2 and कार्तिक, 3. Sorry. दिशा, what is the cardinal number of this relation? कितने एलिमेंट्स है जी? R 1, 2, 3. अगर मैं आपसे पूछूं what is the cardinal number of A cross B over here, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ 4 एलिमेंट है, तो आई थिंक कार्डिनल नंबर ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय कार्डिनल नंबर ऑफ B क्या क्या हो जाएगा जी? इसका 3 है और इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 4. तो देखो 12 एलिमेंट. तो A क्रॉस B क्या है? इसके पास 12 एलिमेंट्स है विदाउट एनी कंडीशन. All the elements are there which is equal to 12. So it can be represented as a bigger circle. Relation क्या है? It has some condition. क्या मैंने condition लिखा नहीं है, but I am only picking those people who are first 3 rankers. और the 4th rank वाला में कोई मैपिंग ही नहीं आ रहा है. अब मान लो यहाँ पर रहता दिशा, अभिषेक एंड अन्वेषा भी रहती, तो मैंने अगर ये रिलेशन डिफाइन किया है, it is like this relation is a subset of this A cross B. इस A cross B का एक टुकड़ा है with some conditions. कंडीशन इसमें क्या था जी? कि भाई इसमें ऐसा ही सेट बनाओ, ऐसा ही पेयर बनाओ जिसमें कि टॉप 3 रैंकर्स हो. तो 1, 2, 3. मैंने देखो अन्वेषा को नहीं लिया, मैंने 4 भी नहीं लिया. दैट मीन्स यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं. तो रिलेशन क्या होगा? Will be some subset of this A cross B with some specific conditions. So you can write in one word कि भाई relation कुछ नहीं, it is just a subset of that A cross B with some or some conditions, whatever. Is that okay? जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लो, मान लो 1, 2, 3 एंड इधर है A और B. अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं, ये है सेट A, ये है सेट B, तो इसको हम कैसे लिखते हैं पता है? इसको ऐसे लिखते हैं, देयर इज अ रिलेशन सच दैट फ्रॉम A to B, अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A to B. कैसा रिलेशन जी? ये 1 का इसके साथ और इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, बस. इसका कोई नहीं, इसके पास 2 पार्टनर, इसका 1 पार्टनर, इसका कोई नहीं. तो ये रिलेशन के जो एलिमेंट्स होंगे क्या क्या होंगे जी? 1, A, 1, B, then 2, A. 1, A, 1, B and then 2, A. There is no mapping from 3. This way this relation has been defined.
So I say that the cardinal number of this relation is nothing but 3. But if somebody is asking me A cross B, then I think I can write many elements, right? सबको लिखना पड़ेगा. 1 के साथ A का, 1 के साथ B का, 2 के साथ A का, 2 के साथ B का, 3 के साथ A का, 3 के साथ B का. तो रिलेशन में क्या हुआ, इतना सारा जो था A क्रॉस B का, इसका टुकड़ा है. Some parts are only there. Therefore I say that relation is a subset of A cross B. सर ये क्या लिख दिया सर आपने, ये वाला, ये सिंबल है जी सबसेट का, लिख लो. Right, okay, if you have understood so far, copied and understood relations. Right, okay, if you have understood relations. Correct? Give me a moment. I'll just pick up one conceptual questions on this and then we will go ahead. Just a moment. Yeah, just a second. Yeah, there I am. People, I am just picking up one question to actually explain it to you how a simple question can come up from relations. Of course, I'm not telling कि CAT में इस type का इतना easy question देंगे ये लोग, but you know, we are also preparing for other exams wherein some basic questions can be asked. Yes, go ahead. Tell me the answer for this. Which of the following is the relation from set A to set B when A is this, B is this? Make it fast. Pretty easy. Others, I've just given 30 seconds. Make it fast. Try the second one also. Abhishek, banao yaar. Wonderful. So I need not speak anything and answer is C. Is it? That's good. Tell me the answer for question number 2. Aryama, you there? Yes, question number 2. You can tell me the answer very quickly. Very good. Okay. So if I am talking on this point, this relation, this is set A, this is set B. Very good. So no need to discuss this anymore. Set A में है 1, 2, 3. Set B में है A, B. There is a relation from A to B. कौन सा है जी A, अच्छा. What is the which of the following is the relation from set to set B? Are you correct? Answer is B or C? Is it C, right? Sir, You C said में 2, B क्यों नहीं हुआ? C में 2, B जरूरी नहीं है. मैंने कहा ना, रिलेशन को मतलब नहीं है कि सबके साथ मैपिंग. A क्रॉस B को मतलब है कि सबके साथ मैपिंग चाहिए. मैंने अभी तक आपको दिखाया था. आंसर इज C इन दिस केस. समझे? ये 1 का मैपिंग A के साथ है, 1 का मैपिंग B के साथ है. चलो ठीक है. 2 का मैपिंग A के साथ है, 2 का मैपिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. 3 का मैपिंग A के साथ है, 3 का मैपिंग B के साथ है. तो रिलेशन क्या है? A क्रॉस B का टुकड़ा है. इसके A क्रॉस B में 2 के साथ भी B होता. सर ये वाला तो नहीं होगा, बिकॉज पहले A नहीं आ सकता, पहले 1 ही होना चाहिए, बिकॉज फ्रॉम A टू B. Understood? चलो. Now, in this case, this relation from A to B, there is a term called domain of relation. Domain. तो domain क्या है जी? Domain is nothing but all those values of set A from which arrow is coming. ऐसे समझो. All x values जहां से arrow आ रहा है,
तो यहाँ पर देखो सब में से एरो आ रहा है, 1 से भी एरो आ रहा है, 2 से भी एरो आ रहा है, 3 से भी एरो आ रहा है, इसका डोमेन हो जाएगा 1 2 3। अगर यहां 3 से कोई एरो ही नहीं जाता तो इसका डोमेन क्या हो जाता, सिर्फ 1 2। अंडरस्टूड दिस डायग्राम? फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड डोमेन फ्रॉम हियर। डोमेन का मतलब क्या होता है, ऑल द वैल्यूज ऑफ x और ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट A, डोमेन रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B में डोमेन क्या होगा, ऑल द वैल्यूज ऑफ सेट A which satisfy the condition, जो भी रिलेशन है। जैसे कि 3 से कोई मैपिंग नहीं हुआ, मतलब 3 इज नॉट इन द डोमेन। या तो अगर लेमैन तरीके से बोले तो जहां से भी एरो जा रहा है उन एलिमेंट्स को अगर आप लिख दोगे तो वो कहलाएगा डोमेन। एक दूसरा टर्म आता है रेंज। रेंज इज नथिंग बट डोमेन एक्चुअली करस्पॉन्ड्स टू इनपुट एंड रेंज करस्पॉन्ड्स टू आउटपुट। रेंज इज नथिंग बट जहां जहां एरो आ रहा है, या तो ऑल दी outputs obtained is called the range, लिख सकते हो। So all the outputs obtained is called the range. In this case the range will be a comma b। मगर मान लो यहां पर a b पे कोई आता ही नहीं, यानी b पे कोई b आउटपुट है ही नहीं, तो इसका रेंज होता सिर्फ और सिर्फ a। अग्री? तो फाइनल डायग्राम बनाओ ये वाला 1 2 3 बनाओ, एक ही एरो निकालो, 2 एरो, 3 से मत निकालो, बी में मत लाओ, तो इसका डोमेन ये होगा, रेंज ये हो। एक और टर्म आपको जानना होता है, समथिंग कॉल्ड को डोमेन। को मतलब क्या होता है, टुगेदर। तो ऐसे समझो टुगेदर जो जो आ सकता था, जो जो आउटपुट पॉसिबल हो सकता था, which is nothing but the entire set B, मतलब ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। को डोमेन क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। तो लिखो यहां पे डोमेन क्या होता है, ऑल इनपुट्स, एक्चुअल इनपुट्स। रेंज क्या होता है, ऑल एक्चुअल आउटपुट्स, एक्चुअल्स। ठीक है, ये लेमैन तरीके से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। we are just 2 minutes away from functions, domain, range and codomain। cd लिख रहा हूं, codomain, all possible, जो आ सकता है, not the actuals, outputs, which is nothing but the entire set B। सर नहीं समझ में आया सर, एक एग्जांपल ले लो सर। देखो यार, एक रिलेशन डिफाइन किया गया है 3 5 1 7 and 2 a। डोमेन बताओ, रेंज बताओ एंड को डोमेन बताओ फटाफट। अंकित डोमेन बताओ। डोमेन सर 3 1 2 हो जाएगा। वेरी गुड। पहला सेट ये वाला, ये वाला, ये इनपुट्स है। सर ऐसा क्या है सर कि 3 5 में 3 इनपुट होता है क्या सर? हाँ जी, आपको याद है x y, मतलब x एक्सिस इनपुट वैल्यू, y एक्सिस आउटपुट वैल्यू, ये इनपुट होगा, ये वाला आउटपुट होगा, करेक्ट। चलो रेंज बताओ। रेंज सर 5 7 9। 5 ए 9 नहीं, ए है, चलो ठीक है, 5 7 ए, करेक्ट। कोडोमेन क्या होगा यार? सेम हो जाएगा सर, इधर तो। वेरी गुड, यहाँ पे कोडोमेन और रेंज सेम है क्योंकि सारा ही आउटपुट्स है। मगर अगर ये कहता ऐसा, देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू एन, सेट ए कंटेन्स 3 1 2, देन कोडोमेन क्या होता? एन क्या है? क्या है? एन नेचुरल मतलब नंबर, एन नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब सेट बी जो है मेरा, एंटायर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया। हाँ, उस केस में कोडोमेन ये नहीं होता, कोडोमेन एंटायर नेचुरल नंबर होता, करेक्ट। यस सर। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नॉट सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर कॉपिंग। बस क्वेश्चन इतना ही रखो कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज दैट ओके? डोमेन रेंज समझ में आ गया? नाउ वी आर गोइंग इनटू द फंक्शंस, right? Okay, if you have understood so far and copied and all set, because अगर मैं पूरे बेसिक से नहीं चलूं, आप लोग फंक्शंस में परेशान हो जाओगे।
allow me to go from 0. All right, copied everyone? Wonderful. Karthik, copy किया? हाँ सर, बस लास्ट में। हाँ लिखो, कॉपी करो। हो गया? चल आगे बढ़े। अब आ जाओ एक्चुअली में फंक्शंस पर। ध्यान से समझना जी। मैंने अभी कहा था कि A क्रॉस B का सबसेट होता है रिलेशंस। अभी मैं जो फंक्शंस की बात करूंगा, फंक्शन रिलेशन का सबसेट है। समझ रहे हो? फंक्शन लिख लो, फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ द रिलेशन। मतलब कि A क्रॉस B में अगर मैं लेमैन तरीके से बोलूं सरबजीत, में कोई नखड़ा नहीं था, देयर वाज नो कंडीशन। आप सारे मैपिंग करते थे, करेक्ट? ऑल मैपिंग्स अलाउड। मगर रिलेशन में क्या हुआ? देयर वर सम कंडीशंस एंड मैपिंग्स मे और मे नॉट बी अलाउड। व्हेन इट कम्स टू फंक्शन, देन इज कुछ ज्यादा ही नखड़ा है इसका। क्या है जी, जरा देखेंगे। इसमें थोड़ा और फाइंड कंडीशंस होंगे। ध्यान से देखो। मान लो सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में A, B, C। मैं मैपिंग से समझा रहा हूं, पहले वो समझो। अगर मैं कहूं कि A 1 से ये हो गया, 2 से भी A हो गया एंड 3 से C हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। फंक्शन इज बेसिकली अ मशीन। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होता है, फंक्शन को आप समझो एक मशीन की तरह। इसमें कुछ इनपुट आएगा तो ये डेफिनेटली आउटपुट देगा। इस केस में इसके इनपुट्स है 1 2 3, तो डेफिनेटली आउटपुट आ रहा है, तो ये फंक्शन है। मगर अगर मैं कहूं सेट ए ऐसे बनाओ, सेट बी ऐसे बनाओ, और ये लिख दूं 1 2 3 और ये लिख दूं ए बी सी, और अगर मैं ऐसा मैपिंग करता हूं, बस छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया, तो क्या ये फंक्शन है? इज इट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी? तो हम कहेंगे कि नहीं सर, ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, क्या ये रिलेशन है? हाँ रिलेशन है। रिलेशन में कार्तिक याद है, छूट गया तो आप पूछ रहे थे, कोई चीज छूट सकता है, मैपिंग ना हो, दैट इज अलाउड। बट फंक्शन कहता है कि आई एम अ मशीन, इफ आई हैव द इनपुट्स आई विल डेफिनेटली गिव द आउटपुट्स। सो देयर कैन नॉट बी अ केस कि सेट ए में कोई एलिमेंट छूट जाए, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं कर रहा, थोड़ी देर में बुकिश लैंग्वेज भी बोल दूंगा, बट एज ऑफ नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्राफिकल दिस डायग्राम से, मैपिंग से। एक और देखो, मान लो 1 2 3 A, B, C। अब मान लो A से ये हो गया, सॉरी 1 से ये हो गया, और 1 से B भी हो गया, और 2 से A हो गया एंड 3 से C हो गया। ये सेट A है, ये सेट B है। दिशा, इज इट अ फंक्शन? Is it a function? Sarabjit, is it a function? Anybody? Everybody? Is it a function? Okay. Now, understand one more thing. फंक्शन का एक और नखड़ा है जी। रिलेशन बेचारा नखड़ा ज्यादा नहीं करता, ए क्रॉस बी तो कुछ नखड़ा नहीं करता। रिलेशन सम कंडीशन, फंक्शन कम्स विथ इवन रिफाइंड कंडीशंस। फंक्शन सेज कि if there will be input, definitely I will give output। और एक बात और ये कहता है कि अगर इनपुट एक हो तो मेरा आउटपुट भी यूनिक ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहां पर व्हीट डाला तो यहां पर आपका दाल का पाउडर आ जाएगा, करेक्ट? ऐसा होगा क्या? व्हीट डालोगे सो अगर ये मशीन जैसा है तो व्हीट डालोगे, दोबारा व्हीट डालोगे, जूस निकल जाएगा। ऐसा होता है क्या? या तो व्हीट डालोगे तो एक बार दाल पाउडर निकल जाएगा और एक बार व्हीट डालोगे जूस निकल जाएगा। ऐसा होता है कभी? मशीन कभी ऐसा करता है? सो फॉर अ डिफाइंड इनपुट इट विल हैव इट्स डिफाइंड आउटपुट।
मगर ये वाला देखो मैपिंग, व्हीट डाला, एक बार जूस निकल रहा है, एक बार दाल पाउडर निकल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। आइडिया इज एक जगह से दो आउटपुट नहीं निकलेगा, ये फंक्शन नहीं है। एनी डाउट? अगर मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, एक और एग्जांपल लो, फोर्थ डायग्राम बनाओ, 1 2 3 ये बनाओ ए बी। जैसे कि मान लो ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। फोर्थ डायग्राम, इज इट अ फंक्शन? बताओ, इज इट अ फंक्शन? यस, इट इज अ फंक्शन। देखो इनपुट है तो सबसे मैपिंग होना चाहिए, सही बात है। और दो अलग अलग इनपुट से एक आउटपुट आ सकता है, मगर एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं हो सकता, ये चलेगा। ये एक्चुअली मेनी टू वन है। एनी डाउट? वन टू मेनी मैपिंग नॉट अलाउड, लिख लो, वन टू मेनी मैपिंग इन फंक्शंस, लिखो नोट्स में, इन फंक्शंस वन टू मेनी मैपिंग नॉट अलाउड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखो, अभिषेक समझ में आ रहा है? मैं अभी प्रैक्टिस एक और एग्जांपल से कराऊंगा। दूसरा लिखो, मेनी टू वन इज अलाउड। थर्ड पॉइंट लिखो, इनपुट will have definite mappings, मतलब definitely mappings will be there from input, right? Okay, if you have understood. input से ऐसा नहीं कि मान लो यहाँ 4 बच गया, ये फंक्शन नहीं पिछले होगा। वाला कॉपी करना है। हाँ कर लो कॉपी। मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा फंक्शंस। एक और ये वाला एग्जांपल और पीछे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाला, ना मेनी टू वन वाला। अच्छा अच्छा ये वाला, इन फंक्शंस वन टू मेनी मैपिंग इज नॉट अलाउड, ऐसे लिखो। Right? Okay, if you have understood so far. I'm trying to go very slow. Anvesha, okay, understood. What about Aryama? मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा, देखो कार्तिक, अभी आपको फिर से समझ में आएगा। चल, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन टू सरबजीत। क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन और नॉट, ठीक है? इज इट अ फंक्शन और नॉट? क्वेश्चन ऐसे लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 x y z, इधर एक और ले लो, 4 भी ले लो, ठीक है? x y z। देखो मैं मैपिंग कर रहा हूं। सरबजीत, टेल मी, इज इट अ फंक्शन? इज इट अ फंक्शन? नो। वेरी गुड, एवरीबडी ड्रॉ दिस डायग्राम, राइट नो। मैं यहीं पे इरेज करूंगा और यहीं पे दूसरा बनाऊंगा। तो ये इसका आंसर होगा, पहला डायग्राम आप बनाओ, दूसरा डायग्राम बनाओ, कॉपी करना जी, क्योंकि मैं बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा। दूसरा डायग्राम बनाओ। अंकित, इज इट अ फंक्शन? यस सर। वंडरफुल, दूसरा आंसर का होगा यस, इट इज अ फंक्शन। थर्ड क्वेश्चन बनाओ। कार्तिक बता भाई, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, इज इट अ फंक्शन? क्या ये फंक्शन है? कार्तिक, क्या ये फंक्शन है? यस। दिशा, इज इट अ फंक्शन? No, sir. नो सर। व्हाई दिशा, कैन यू हेल्प मी? क्यों नहीं है? So, sir, there are many inputs. मेनी इनपुट्स ऐसे नहीं है, ऐसे समझो
कि मैंने कहा था 1 to many इज नॉट अलाउड, जैसे कि 1 से 2 एरो नहीं निकल सकता। एक्चुअली मैथमेटिकली मैं आपको समझा रहा हूं एक और तरीके से, ध्यान से देखो। जैसे कि यहां पर 1 2 3 4 है, x y z है। अगर मैं 1 to x करता हूं तो मैं कहता हूं x इज अ इमेज ऑफ 1। एक वर्ड आता है इमेज, तो x क्या है? 1 का इमेज है। उसी तरीके से हम कहते हैं 1 इज अ प्री इमेज ऑफ 1, तो लिख लो x इज अ इमेज ऑफ 1। उसी तरीके से 1 को आप बोलते हो 1 इज प्री इमेज ऑफ x। तो बुकिश लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो ये लोग ऐसे लिखते हैं कि अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b such that every element of set A has a unique image in set B. Sarabjit, let me know if I am telling correct. I repeat, a function is defined. आप लोग को याद नहीं करना ये सब चीज, आप लोग को वैसे सोचना भी नहीं है। आप मैंने जैसे समझा दिया मैपिंग वैसे समझो, बट स्टिल लेट अस अंडरस्टैंड इमेज प्री इमेज क्या होता है। अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, एक्चुअली बोलता है ऐसे, अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ फंक्शन। वो रिलेशन फंक्शन तब है जब every element of set A has unique image in set B। ये नहीं चलेगा क्योंकि ये एलिमेंट के पास यूनिक नहीं है, x भी है इसका इमेज और y भी इसका इमेज है, इसी कारण ये वाला फंक्शन नहीं है। मगर ये वाला देखो, every element of set A has unique image in set B। जैसे कि 1 का यूनिक इमेज x है तो 2 का भी यूनिक इमेज x है, 2 का एक और इमेज नहीं है। I can also say no element of set A will have more than one image in set B. Agree? Right? Agree. Agree या तो disagree? Yeah, very good. चलो आ जाओ जल्दी से एक बार, एक और छोटी सी बात। This is A. So Sarabji, did you understand the difference between function and relations? जैसे कि ये वाला एक रिलेशन है, समझो बात को, ये एक रिलेशन है मगर ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये वाला छूटा हुआ है इसीलिए फंक्शन नहीं है। चलो नेक्स्ट लिखो, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन एंड रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शंस। टॉपिक लिखो, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शंस। इस डायग्राम में इट इज अ फंक्शन डेफिनेटली। कोई मुझे बता दे डोमेन। अंकित डोमेन बता इसका। डोमेन तो वो होगा ना 1 2 3। Yes, domain is nothing but all the allowed inputs. Aryama, what is the range of this? Disha, what is the range of this? Oh, you guys take so much time. Yeah, that's good. A comma B, that's it. जहां जहां एरो आया, सर ये तो रिलेशन जैसा ही है सर। हाँ जी, कुछ नया नहीं है। कोडोमेन ऑफ दिस, अभिषेक, व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ दिस? एंटायर सेट बी? यस, सेम, वेरी गुड। सो देयर इज नथिंग ग्रेट। कोडोमेन, रेंज आपको समझ में आ गया, करेक्ट? ऑल ओके? चल अब ध्यान से देखो जी, एफ एक्स के टर्म्स में हम बात करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। इट इज अ फंक्शन। वी नीड टू समटाइम्स चेक वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। अभी मैं फिलहाल बता रहा हूं कि ये फंक्शन है। जब कभी भी फंक्शन ऐसे लिखा रहता है इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। इसका मतलब कि ये जो अंदर वाला ब्रैकेट के जो अंदर वाला जो पोर्शन है ना अन्वेषक, ये वाला है इनपुट।
यानी ये मशीन है, ये इनपुट लेता है x, उसमें कुछ ऑपरेशन करता है, x में 1 जोड़ देता है और आउटपुट दे देता है x+1। यानी ये वाला जो पोर्शन निकलेगा ये कहलाएगा मेरा आउटपुट। ध्यान से समझना, जब कभी भी ऐसा रिलेशन दिया रहे, सपोज f ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू x³ प्लस 1/x² प्लस 5। छोटा सा एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में मैं समझता हूं कि ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये है मेरा इनपुट और ये फंक्शन ऑफ 1/x है, यानी ये जो रिजल्ट आएगा, ये जो दाहिने तरफ पार्ट है, ये पूरा पार्ट कहलाता है मेरा आउटपुट। सो यू अंडरस्टूड कि जब कभी भी एक्सप्रेशन दिया रहता है, इनपुट किसको बोलते हैं, आउटपुट किसको बोलते हैं। लिखो ओके इफ यू हैव अंडरस्टूड। वेरी गुड। चलो अब आ जाओ सेम क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू x+1। देखो हमेशा हम लोग ग्राफ में every time on the graph we represent the input on the x axis। कन्वेंशन है, इनपुट को हमेशा x एक्सिस में डालते हैं, और जो आउटपुट आता है इसका नाम हम लोग y देते हैं या तो fx भी दे सकते हैं। तो आउटपुट इज थ्रोन ऑन द y एक्सिस। ध्यान से समझना, आउटपुट का नाम हम लोग y दे सकते हैं या तो fx भी लिख सकते हैं, और हम इसको टैब्यूलेट भी कर सकते हैं। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखना इनपुट एंड राइट हैंड साइड में आप लिखना आउटपुट। इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1। यानी जब इनपुट का वैल्यू 0 होगा तो आउटपुट का वैल्यू होगा 1। तो 0,1 इज 1 पॉइंट। इन द लाइक मैनर somebody can tell me, just a moment, अगर इनपुट मेरा 1 होगा तो आउटपुट 2 होगा, यानी इनपुट जब 1 होगा तो आउटपुट मेरा लगभग 2 होगा। ये है पॉइंट 1,2। यू कैन सी दैट इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पावर 1 है तो ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब कि अगर मैं इन दो लाइंस को जोड़ दूं तो इट इज गोइंग टू गिव मी अ कर्व। तो ये कहलाता है इस ग्राफ, इस फंक्शन का ग्राफ, दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन fx इज इक्वल टू x+1। मैंने आप लोगों को सिखाया भी था x+1 का ग्राफ बनाना एंड ऑल दोस थिंग्स। नाउ आप समझ गए, कभी भी ये इनपुट रहा तो उसको लेफ्ट हैंड में लिखो, राइट में ये वाला पार्ट को लिखो, कुछ वैल्यूज लगा करके किसी भी ग्राफ को आप बना सकते हो। अब हमें ये समझना है यहाँ पे कि इसमें इस फंक्शन का डोमेन क्या है। अभी तक आपने डोमेन रेंज समझा था बाय चेकिंग द मैपिंग, मैपिंग के टर्म्स में। हम लोग अब डोमेन रेंज समझेंगे अगर एक्सप्रेशन दिया रहता है। इसका ग्राफ है अंकित देखो ऐसा, करेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका डोमेन क्या होगा, तो आप सोचोगे कि डोमेन होता है इनपुट। पीपल, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गो बच्चा काइंड ऑफ वे इन द बिगिनिंग, बिकॉज जब डिफिकल्ट करेंगे तो आप सिर्फ देखोगे, समझ नहीं पाओगे। तो देखो इसका डोमेन क्या होगा कि एक्स एक्सिस के कौन कौन से वैल्यूज ये फंक्शन ले लेगा और इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। मतलब व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ इनपुट्स allowed for this function. You can see that for this graph the entire x-axis is an allowable range. All the values which you put here is satisfying this. So I say that the domain of this function is entire real numbers. हर रियल नंबर अलाउड है। इसको लिखने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है, -∞ से लेकर के +∞, इसका डोमेन है। सर रेंज क्या है सर इसका रेंज? यार रेंज होता है आउटपुट, मतलब कौन कौन सा वैल्यू इनपुट देने पे आउटपुट आएगा, मतलब कौन कौन सा आउटपुट आएगा। तो आप देख सकते हो y एक्सिस का कौन सा पोर्शन आएगा। यू कैन सी एवरी वैल्यू, ये वाला यहाँ पर भी ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, समझ रहे हो। x एक्सिस का कोई भी वैल्यू लोगे देयर विल बी सम आउटपुट। I think the entire y-axis is my allowable range, allowable outputs. So the range for this question will be entire real number,
which can also be written as minus infinity to plus infinity. And interestingly, since there are no conditions, my codomain क्या हो जाएगा जी? Again, entire real numbers, minus infinity से plus infinity. Have patience, but still write okay if you have understood this particular question. We are going to increase the difficulty level. Write okay everyone, write okay if you have really understood कि अगर इक्वेशन दिया रहता है तो उसको डोमेन कैसे निकालते हैं और उसका रेंज कैसे हम सोचते हैं. चल, वेरी गुड. नेक्स्ट देखो जरा, अगर मैं लिखता हूं अंकित fx इज इक्वल टू रूट अंडर x, आपको ग्राफ इसका मैं याद करवाने वाला हूं, जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा. अभी फिलहाल देखो, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका डोमेन क्या है, तो आप सोचोगे कि इस x पे क्या क्या कंडीशन है. मतलब कि ये जो फंक्शन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस इज सेटिस्फाइड, दिस इज डिफाइंड. सो लिख लो डोमेन क्या है. और जैसे कि मान लो यहाँ पर x+1 ले लो, ठीक है. लिखो डोमेन क्या है, ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड, fx को कोई दिक्कत नहीं हो. अच्छा अभिषेक, कभी ऐसा देखा है अंडर रूट के अंदर माइनस? कभी देखा ऐसा? ऐसा नहीं होता. मतलब क्या कि अगर आपको डोमेन निकालना है तो आपको सोचना है कि ये फंक्शन डिफाइंड है जब अंदर वाला पोर्शन पॉजिटिव है. मतलब कि x+1 का वैल्यू 0 या तो 0 से बड़ा है. इसका मतलब x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए. मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, ये है x पे कंडीशन, इस कंडीशन के तहत ये फंक्शन डिफाइंड है, तो यही कंडीशन को हम डोमेन कहते हैं. तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -1 से लेकर के सारे बड़े वैल्यूज. इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो. नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहां लिखो -1, फिर दे दो बोल्ड और राइट हैंड साइड में करके इसको शेड कर दो. इसका ये डोमेन है. राइट ओके इफ यू हैव अंडरस्टूड द डोमेन ऑफ दिस. any question? अच्छा, yeah Ankit, I understood OG is okay. ठीक है. Anyway, Aryama, no response, is that okay? चल, जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जी, आप लोग बनाओ. 1/√, छोड़ो अंडर रूट, छोड़ो है ना, अंडर रूट छोड़ो, इसको लिखो x+5. इसका डोमेन क्या होगा? ध्यान से सोचो, ये 1/, है. और एक क्वेश्चन और लिख लो, और एक क्वेश्चन और लिख लो, और एक क्वेश्चन और लिख लो. Four questions I have given. 1, 2, 3, 4. After these 4 questions, yes. After all these 4 questions, except 5 or -5, Sarabjit? Yeah, that's correct. Yeah, after doing all these 5 questions, 4 questions, you will understand कि भाई डोमेन कैसे सोचते हैं, क्या मतलब है डोमेन का. Giving you 1 minute, okay? चलो, your time starts now. जल्दी जल्दी बनाओ.
Very good. Yeah, your time is up. That's correct. People, I know these are pretty easy. So what I'll do, I will solve it and you match your answers. You see, this function का domain होगा for what value of x this is defined. I think x नीचे वाला जो कभी भी आप जीरो नहीं अलाउ करते हो, यानी x plus 5 का वैल्यू हमेशा कुछ भी हो सकता है, बट इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन जीरो नहीं हो सकता. अभिषेक, कार्तिक, ध्यान से देखो. सर क्यों नहीं हो सकता सर? 5/0 हम एक्चुअली अनडिफाइंड कहते हैं. सो नेवर अलाउ जीरो इन द डिनोमिनेटर, यानी इसका वैल्यू x का वैल्यू जो है ना -5 नहीं होगा. तो हम इसको कैसे लिखते हैं डोमेन? तो हम लिखते हैं डोमेन इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर माइनस दैट -5. सर ये कर्ली ब्रैकेट में आपने क्यों डाला सर? कर्ली ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ जी, कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है कि दिस ओनली -5 इज नॉट अलाउड. ध्यान से रखना, इसको कर ब्रैकेट नहीं. एनीवे, सो दिस इज ट्रू, मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देखो, इट इज इन द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में नीचे तो 1 है, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, यानी x + 5 इज ट्रू. मतलब ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. सो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स. मैच करना. आई थिंक ये वाला अभी हमने कर रखा है कि अंदर का वैल्यू हम जीरो अलाउ करेंगे और जीरो से बड़ा अलाउ करेंगे, यानी x का वैल्यू -5 से बड़ा होगा. यहां पे क्या प्रॉब्लम है जी? आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? नीचे में है x + 5. आई थिंक नीचे वाला जो पोर्शन है हम जीरो से बड़ा अलाउ करेंगे, क्योंकि रूट है, मगर जीरो अलाउ नहीं करेंगे. इसका मतलब x का वैल्यू -5 से बड़ा. इसको लिखने का क्या तरीका है? -5 कर्व ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर, कर्व, करली मैंने समझा रखा है इनइक्वालिटी में. सो -5 से लेकर के इन्फिनिटी, ये क्या है? ये इसका डोमेन है. ऑल अंडरस्टूड? राइट. ओके, दोज हु गॉट ऑल करेक्ट राइट ऑल. 3 करेक्ट राइट 3, 2 करेक्ट राइट 2. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट one. चल, very good. Pretty easy. It seems all should get correct. Okay. Parallelly, people ग्राफ एक आध याद करते चलो. जैसे कि f(x) is equals to √x. इसका ग्राफ आपका होता है ऐसा, जीरो से शुरू होगा, ऐसे जाता है. इसको मैं ना ग्रीन कलर से बना रहा हूँ. एक्चुअल जो ग्राफ है वो ग्रीन कलर से बना. f(x) is equals to √x का ग्राफ है ये वाला. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. धीरे धीरे याद करते चलना ग्राफ, क्योंकि ग्राफ के क्लास में आपको फिर दिक्कत आएगी. लिखो f(x) is equals to x². डोमेन क्या होगा? नेक्स्ट लिखो f(x) is equals to log x². f(x) is equals to 2 log x. आपको log याद होगा. नेक्स्ट लिखो, सबका डोमेन निकालना है. ठीक है, f(x) is equals to mod x plus 5. Okay, your time starts now. Giving you just 1 minute. Make it fast.
ओके, योर टाइम इज अप. चलो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डोमेन क्या होगा? आई थिंक ऑल रियल नंबर्स. ऑल रियल नंबर. आपको ग्राफ याद करना है थोड़ा सा, इसका भी लिख लो. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, लर्न इट, लिख लो यहाँ पे. जिनको याद नहीं है बहुत पिटाओगे, ये सब छोटी चीजें याद होनी चाहिए. कैसे होगा था इसका ग्राफ? इसका ग्राफ पाराबोलिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. ये कर्व ऐसे जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. आप देख सकते हो एवरी वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस इज अलाउड. ठीक है. नेक्स्ट, log एक्स स्क्वायर. सर मुझे log, सर मैं भूल गया सर. आप पढ़ाते तो हो, मैं ना रिवाइज नहीं करता सर, इसलिए मैं भूल जाता हूँ. log x टू द बेस a, इस पर मैंने बताया था क्या क्या इसका कंडीशन होता है. log का ग्राफ अगर आप देखो तो ऐसा होता है, ऐसा याद आना चाहिए आपको. ऐसा मतलब कि ये जो x है, ये जो x है यही तो इनपुट है. तो इनपुट वैल्यू क्या क्या अलाउड है? एक्चुअली x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. 0 अलाउड नहीं है. 0 पर ये एसिम्पटोट बनाता है, मतलब 0 पे इंफिनिटी चला जाएगा. 0 इज नॉट अलाउड, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 0. और ये जो बेस होता है, बेस पे क्या कंडीशन था? बेस इज ग्रेटर देन 0. ऑल्सो बेस इज नॉट इक्वल टू 1. बेस का वैल्यू कभी 1 नहीं होता. 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, लॉग के नोट्स खोल के देखो, मैंने समझाया था. सो लॉग उग रहेगा तो आपको आना चाहिए. ग्राफ याद करो. सर क्या याद करना है? लॉग एक्स का ग्राफ ये वाला ऐसा. ठीक है, याद करो अभी. एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, क्योंकि अब आपको तो ग्राफ सारे याद करने होंगे, बेसिक ग्राफ्स. ठीक है, चलो आ जाओ. आई थिंक यहां पर अगर आप देखो अंदर का वैल्यू, इस पर क्या कंडीशन है? तो इसका जो वैल्यू है 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए. भाई ये कौन से वैल्यू x के लिए ट्रू है? ऑल रियल नंबर माइनस 0. अंदर का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए. कार्तिक समझ में आ रहा है? और यहां पर है, अंदर में है एक्स स्क्वायर, उसका वैल्यू 0 से बड़ा. तो कोई भी x डालोगे, नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो, वो 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि तो एक्स स्क्वायर है. चलो x का वैल्यू 0 से बड़ा, तो डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर माइनस 0. ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे भी छोड़ दो. ये चीज देखो मॉड एक्स. सर मैं मॉड एक्स का भूल गया सर. एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसे था सर? मैंने बताया था मॉड्यूलस पढ़ाते समय, वी शेप. वी शेप ये ग्राफ होगा. ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. इसको ग्रीन से कर देता हूँ, छोड़ो शेड कर दो, ये वाला वी शेप. तो अगर मैं आपसे पूछूं मॉड एक्स का डोमेन क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर एक्स का सारे वैल्यूज अलाउड है, इसको कहेंगे डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. इन द लाइक मैनर इन दिस क्वेश्चन आई थिंक x plus 5 is only shifting along right side by 5 unit. इसका ग्राफ ये होगा. ये मैं आप लोगों को ग्राफ में फिर से रिपीट करूंगा, बट यू कैन सी दैट. आप यहां पर भी देखो कि x अंदर में जो कौन कौन सा वैल्यूज अलाउड है, जो मॉड को दिक्कत नहीं होगी. तो आई थिंक ऑल रियल वैल्यूज आर अलाउड, सो हियर आल्सो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स. राइट, 1 2 3 4. Write 4 if you have got all 4 correct. 3 2 1 if you have got 1 correct, like that. Make it fast. 2 2 2. others नहीं लिखोगे? अरे शर्माना है क्या? यही तो फायदा है ऑनलाइन क्लासेस का. हमारे समय में तो टीचर अभी तक तो पिटाई भी करते थे. हमारे आप लोगों के समय में तो टीचर के हाथों से तो कोरोना ने ये ताकत छीन लिया है. Anyway, just kidding. Go ahead, do this question on domain. Fx is equals to this is a real valued function. Make it fast. Giving you just 1 minute. What is the domain of this?
All right, 10 seconds more, make it fast. सर स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इंक्लूडेड। इंक्लूडेड है। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इंक्लूडेड, 2 is included. Okay, your time. Yeah, tell me. नन ऑफ दिस होगा फिर। None of these are. Somebody is getting C. Ankit, you wrote C, right? सर वो मैंने सोचा था कि नहीं कर सकते। नहीं, स्क्वायर मैंने बताया था ना, कर्व मतलब नॉट इंक्लूडेड, स्क्वायर इज इंक्लूडेड। ओके, मैं ना पहले इसको आपको तरीके से समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं ऑप्शन से भी आपको बता दूंगा। डोमेन का मतलब क्या कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी पोर्शन है उस पर क्या कंडीशन वो लगाना है और एक्स पर कंडीशन निकालना है। ये है कि एक्स belongs to all infinite, all real numbers and stuff like that. So अगर अंदर देखो तो ये सारी चीजें हैं, ये वैल्यू होना चाहिए 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर। पीपल, आप अपने बुक्स खोल के देखो इनइक्वालिटी का, मैंने इस टाइप के इनइक्वालिटी सॉल्व करने बताया था। x is equals to 0, x is equals to 1, x is equals to 2 and x is equals to -3। इक्वेट करना सबको इंडिविजुअली इक्वल टू 0 and you get the value of x, plot them, so -3 then 0 then 1 then 2, then I had told ये कितने रीजन में बांटेगा, 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ बताया था। फिर मैंने बताया था कि भाई इसमें देख लेना 2 से बड़ा कोई वैल्यू पुट करके, 2 से बड़ा वैल्यू मान लो 3 पुट कर दो, तो 3 में क्या है, ये सारा पॉजिटिव होगा ना, सब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब यहाँ पॉजिटिव साइन, और चूंकि डिग्री 1 है मतलब इसका भी डिग्री 1 इसका भी डिग्री 1, तो साइन ऑल्टरनेट चलेगा। सम पीपल आर स्टेयरिंग बट डोंट स्टेयर बिकॉज दिस इज ऑलरेडी डन। आपको चाहिए 0 से बड़ा, मतलब मेरा आंसर कौन सा रीजन होगा, सारा पॉजिटिव वाली, करेक्ट। ये -∞ से +∞ तो नहीं है, ये -∞ से -3, ये वाला तो है, आंसर ये है, बट ये सिर्फ ये नहीं है, उससे ज्यादा है, तो सिर्फ ये है तो ये आंसर नहीं होगा। बट आई थिंक ये वाला देखो, -∞ से -3 ये वाला पोर्शन अलाउड, यूनियन 0 to 1 ये वाला भी अलाउड, बोल्ड मतलब इंक्लूडेड, राइट, यूनियन 2 से इंफिनिटी ये वाला भी अलाउड, सो आंसर ऑप्शन सी, राइट। ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड मेक इट फास्ट, don't get tired, we are going at a good pace, please cooperate। दिशा, you want me to repeat? अभिषेक, कार्तिक, रिपीट करना है। जिनको ये वाला चीज याद नहीं आ रहा है, घर पे इनइक्वालिटी का नोट्स खोल के देखना। अगर नोट्स आपने नहीं ले रखा है अच्छे से, तो इट इज अवेलेबल इन द ड्राइव, जस्ट अ मोमेंट, ड्राइव में पीपीटीज अवेलेबल है, उसको खोल के देखना, जस्ट अ मोमेंट। इज दैट ओके एवरीवन? चल, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डोमेन के बाद थोड़ा सा रेंज भी निकालना हमें आना चाहिए, बट रेंज बहुत ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस रेंज के नहीं आएंगे, बट ओवरऑल यू शुड नो। सर क्या कहना चाह रहे हो? जैसे कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस में हमने डोमेन निकाले थे, आ जाओ यहाँ पे, कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? सरबजीत, दिशा, अन्वेषा, यस सर। हाँ देखो, जैसे कि क्या है कि ये इनपुट है, x इनपुट होगा, ये वाला पोर्शन आउटपुट होगा। तो अगर आपसे पूछता है कि क्या इसका रेंज होगा, तो एक तो तरीका है कि इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, जैसे कि फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई हैव ड्रॉन द ग्राफ हियर, बाय सीइंग एट द ग्राफ आई शुड अंडरस्टैंड कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन एंटायर एक्स एक्सिस, यू सेड ऑल रियल नंबर। रेंज में देखो, अभिषेक ध्यान से देखना, रेंज में देखना कि क्या क्या वैल्यूज y का पॉसिबल है। x दोगे y आएगा, x दोगे y आएगा,
x दोगे y आएगा, ये वाला x दोगे y आएगा, ये लंबा लाइन है इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब इसका रेंज भी पूरा वैल्यूज ऑफ y एक्सिस अलाउ करेगा। तो आप लिख सकते हो इसका रेंज होगा एंटायर रियल नंबर्स। लिखते चलो, हर फंक्शन का रेंज हम लिख रहे हैं, एंटायर रियल नंबर्स। So all values on the output are allowed now, but this is in case, just a moment, फिर से हैंग किया। Hold on for a moment, okay? थोड़ा सा हैंग कर गया, I'll settle it. I need to change the PPT. मैं दूसरा शेयर कर रहा हूँ, just a minute. Yeah, if you can see the screen, right? Yes. This is the new PPT I've shared. Can you guys see the screen? Blank PPT. Right? Yes. That's good. वहाँ पर पेज इंसर्ट नहीं हो रहा था मेरा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये जो फंक्शन था ना f(x) इज इक्वल्स टू x प्लस 1, सर इसका ग्राफ बना करके तो हमको समझ में आ गया सर। अगर सर हमको ग्राफ नहीं बनाने आ रहा है तो मैं इसका रेंज कैसे निकालूंगा? डोमेन तो आपने बोल दिया ऑल रियल नंबर्स, तो इसका रेंज, तो रेंज के लिए मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ध्यान से समझो। फॉर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या करना कि पहले डोमेन निकालना, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 डोमेन निकालो। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। स्टेप नंबर 2, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है इसका नाम दे दो y, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब यहां से ना x का वैल्यू निकाल लो, या तो स्टेप नंबर 2 आप लिखो मेक x दी सब्जेक्ट, मतलब x को लेफ्ट साइड में ले आओ, बाकी सबको राइट में रख दो, ऑफ द फॉर्मूला, ऐसे समझो। अगर आप ग्राफ नहीं बना पा रहे हो तो मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला का मतलब कि x इज इक्वल्स टू y माइनस 1 हो जाएगा। यस। अब सोचो कि आपको निकालना है रेंज। रेंज का मतलब होता है कि y पर क्या कंडीशन। अब उल्टा सोचो कि x सारा रियल नंबर आएगा तो y का कौन सा वैल्यू नहीं अलाउड है जो x को दिक्कत है? I think x is equals to y minus 1. I think every value of y is allowed such that x is defined. रेंज डोमेन के लिए x पर कंडीशन चेक करते थे और देखते थे कि y डिफाइंड है कि नहीं। रेंज के लिए y पर देखेंगे कि अगर x को ऑल रियल नंबर होना है तो y पर क्या कंडीशन होगा। यू कैन सी दैट y इज also all real number, right? Okay, if you have understood, I'll take one more example. ठीक है, जैसे देखो दूसरा एग्जांपल देखो, f(x) is equals to 3x minus 5। ठीक है, ध्यान से समझना। इसका पहले डोमेन निकाल लो, डोमेन आपको दिखेगा कि सारा रियल नंबर्स है। अब इसका स्टेप 1, स्टेप 2 में क्या करो, इसका नाम दे दो y, तो लिखो y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5। स्टेप 3 में क्या करो, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में, y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो आप सोचो कि x
सारा रियल नंबर है, तो y का कौन सा वैल्यू पे ये x डिफाइंड नहीं है? तो आई थिंक y तो ऊपर है सर, तो ऊपर तो सारे y पे x डिफाइंड है, सो हियर आल्सो y विल बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स। और y मतलब क्या? रेंज, सो रेंज इज आल्सो ऑल रियल नंबर्स, राइट? ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। कभी कभी आपको रेंज भी पूछता है, तो रेंज थोड़ा मोड़ा आपको आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपने लिखा है रेंज, ठीक है, इस नए स्लाइड्स में टॉपिक लिखो रेंज। वेरी गुड। अब एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं जो ध्यान से देखना। fx इज इक्वल्स टू 1/3x माइनस 7। छोटा सा बात है, कोई मुझे डोमेन बता दे, बहुत सिंपल। सर नीचे वाले में ना हम जीरो अलाउ नहीं करेंगे सर, क्योंकि फंक्शन को डिफाइन नहीं करता। यानी आप क्या नहीं अलाउ करोगे? x का वैल्यू 7/3 अलाउ नहीं करोगे, यानी सारे रियल नंबर -7/3, करेक्ट? राइट, ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट डोमेन। अब देखो रेंज के लिए मैंने क्या कहा, इसका नाम दे दो y। तो आपने कहा ठीक है सर, y इज इक्वल्स टू 1/3x माइनस 7। क्योंकि देखो इसका ग्राफ बनाना मुश्किल है, क्या करो, अब इसको x को सब्जेक्ट बना लो, ध्यान से देखना जी। 3x इज इक्वल्स टू 1/y प्लस 7। इसका मत मेरे साथ कॉपी करना, मूवी जैसा देखना नहीं। x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/, पूरा लिख देता हूँ जी, 1 प्लस 7y डिवाइडेड बाई 3y, करेक्ट? सॉल्व कर लेना इसका। अब देखो x का वैल्यू क्या नहीं आ सकता, मतलब x किस वैल्यू, y के किस वैल्यू पे x डिफाइंड नहीं है? y का वैल्यू आप क्या नहीं अलाउ करोगे? 0। 0। वेरी ऑब्वियस। मतलब सर ऐसा ये हुआ कि y पर कौन सा वैल्यू, क्योंकि इस x को गुस्सा आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो y इज नॉट इक्वल टू 0। और आप ऐसे भी सोच सकते हो y is not equal to 0 is the answer actually. So range is already obtained. Range is y belongs to all real number minus that 0. Okay, ये आंसर होगा। इसको आप ऐसे भी सोचो कि x पर कौन सा कंडीशन था, x 7/3 नहीं है। अगर x 7/3 नहीं है, इसका मतलब ये वाला 7/3 नहीं है। इसका मतलब क्या सर, कि 1 प्लस 7y/3y is not equals to 7/3। 3 कट जाएगा, y उधर जाएगा, so you can see that 1 plus 7y is not equal to 7y। अगर y equal to 0 हो गया, सोचो, तो 1 is not equal to 0 हो जाएगा ना, या I mean y equal to 0 is not allowed in that case। Sorry, you can't take this one that side। The idea is this is not equal to 7/3, so 3 is gone। Now this is not equal to 7, it is only true when y is not equal to 0। रेस्ट कोई भी वैल्यू y का लोगे, कुछ इक्वेट करोगे तो 7/3 आ ही जाएगा। सो नो नीड टू गो दिस पॉइंट, इतना करने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो भी आता है x, अब सोचो ये डोमेन का क्वेश्चन बना रहे हो, y इज नॉट इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? एक क्वेश्चन इसको लिखो, ओके इफ यू हैव अंडरस्टूड। एक क्वेश्चन आप लोग बनाओ, fx इज इक्वल्स टू x प्लस 2 बाई 3x माइनस 5। इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा? बनाओ जी, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा?
Yes, done. Okay. No, I think domain is pretty simple. नीचे वाला पोर्शन 0 नहीं होगा, मतलब 3x let me change my color. 3x minus 5 is not equal to 0. इसका मतलब x का वैल्यू not equal to 5/3. अग्री? रेंज के लिए क्या बोला था मैंने, इसको y ले लो. y is equals to x plus 2 by 3x minus 5. x को लेफ्ट ला करके बाकी सारा को राइट में कर दो, अकेला x. तो आई थिंक ये हो जाएगा 3xy minus 5y is equals to x plus 2. Yes. अब x का पोर्शन को इधर ले आओ. तो आई थिंक आप देखो तो 5y plus 2 by 3y minus 1. ठीक है जी. दिशा देखना जरा इक्वेशन ठीक लिखा मैंने. ठीक है सरबजीत, अंकित, इक्वेशन ठीक है मेरा? करेक्ट. सो अब हाँ, अब मुझे ये देखना है कि x का वैल्यू किस पर अनडिफाइंड हो जाएगा. आई थिंक y इज इक्वल्स टू 1/3 पे, मतलब 3y minus y should not be equal to 0. So y is not equal to 1/3. इसका रेंज क्या होगा कि भाई रेंज सारे कुछ होगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मगर 1/3 मत रखना. उल्टा. करेक्ट. नॉट वेरी डिफिकल्ट. आई एम स्विचिंग द विंडो. पुराना वाला पीपीटी दिख रहा है कि नहीं मुझे एक बार बताना, ठीक है? पुराना वाला पीपीटी दिख रहा है, बताना जरा. यस सर. हाँ, अब आ जाओ 2-3 क्वेश्चन रेंज का. हम लोग जो ऑलरेडी क्वेश्चंस डोमेन का बना रखे हैं, रेंज का यहाँ पे देख लेते हैं. थोड़ा मोड़ा बेसिक्स आपको आना चाहिए. ये हो गया, रेंज भी पता समझ में आ गया. अब देखो अंकिता थकी नहीं ना? बोलो नो सर. यस सर. या अब देखो इधर कि ये क्वेश्चन को मैं रेंज निकालने वाला हूँ. डोमेन तो आपको पता है. रेंज में क्या है कि ये जो वैल्यू है ये रूट है. रूट आपको पता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है. जैसे कि रूट ऑफ 5 पॉजिटिव, रूट ऑफ x plus 1, x plus 3, ये वाला जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, जीरो भी हो सकता है. जीरो कब होगा यार? x इक्वल टू -1 पे जीरो हो जाएगा. तो एक्चुअली मॉड x का जो रूट ओवर x का जो ग्राफ है, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं डोमेन, आप बोलोगे ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आर प्लस, रियल पॉजिटिव. अगर मैं इस ग्राफ में आपसे पूछूं रेंज, तो वो भी तो आप बोलोगे ना सर नीचे नहीं जाएगा सर, वाई एक्सिस का सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन को ही ये कवर करेगा ग्राफ, नीचे नहीं जाएगा. तो इसका रेंज क्या होगा? वही तो है जो आउटपुट वैल्यूज है, वाई एक्सिस के अलाउड वैल्यूज. दैट इज ऑल्सो रियल प्लस, रियल नंबर्स प्लस. सो आई थिंक अगर अंदर कुछ भी हो तो इसका भी रेंज क्या होगा? रियल प्लस ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स. अग्री? राइट, अग्री. रूट के केस में रेंज रियल प्लस होगा, क्योंकि इसका आउटपुट तो हमेशा मिनिमम 0 आएगा, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएगा. अब ये क्वेश्चन में आ जाओ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा था यार? ऐसा. आउटपुट कभी भी 0 से कम होगा. मिनिमम वैल्यू क्या होगा यार इसका? इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0, स्क्वायर है ना, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी. तो इसका भी हम लोग रेंज लिखते हैं रियल प्लस. आप इसका ग्राफ देख सकते हो. रेंज में क्या होगा? मिनिमम 0 और मैक्सिमम. सर ये रेंज क्या है सर? Range actually gives me the range, the minimum value and the maximum values.
एंड द इंटरमीडिएट वैल्यूज, कहां से कहां तक, हिंदी में ऐसे बोले तो यहां से इंफिनिटी तक, करेक्ट। चल इसका रेंज हो गया। व्हाट अबाउट दिस वन, log x स्क्वायर। तो log का ग्राफ अगर आप देखो ऐसा होता है, आ जाओ मैं ग्राफ में ही आ जाता हूं, यहाँ पे ग्राफ ऐसा, तो इसका रेंज क्या होगा, लिखते चलो ग्राफ के साइड में लिखते चलो। सो अगर आप देखो इसका रेंज क्या होगा, ऑल द वैल्यूज ऑफ y एक्सिस इज अलाउड, राइट। x एक्सिस पे कंडीशन है, इधर नहीं आएगा, मगर y एक्सिस के सारे वैल्यूज अलाउड है, तो इसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। उसी तरीके से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो क्या हुआ, ये इनपुट अगर ऑल रियल नंबर्स है, जीरो तो ऐसे भी अलाउड नहीं होता है, तो एफ एक्स का वैल्यू रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स ही होगा। 2 log x, 2 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू ज्यादा होगा बट रेंज तो वही ना करेगा, सारे रियल नंबर्स। व्हाट अबाउट दिस वन, mod x प्लस 5। चलो mod x का ग्राफ में आते हैं, इसका रेंज क्या होगा, इसके बाद छोड़ देंगे जी, थकना नहीं। इसका रेंज क्या होगा, एनीबडी, सरब जी, पॉजिटिव रियल नंबर, क्या होगा रेंज, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, या तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम इंफिनिटी, करेक्ट। सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज रियल पॉजिटिव। सो अगर ये ग्राफ थोड़ा सा राइट तरफ शिफ्ट कर गया, मैं आप लोग को बाद में समझाऊंगा शिफ्टिंग, ये जो ग्राफ है इधर भी देखो मिनिमम 0 से शुरू होगा, मैक्सिमम कहां से जाएगा, इंफिनिटी तक, इसका रेंज क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, रियल पॉजिटिव। हरियाणा समझ में आ रहा है, इज दैट ओके सो फार। यस सर। थक गया क्या? ओके चलो बस एक लास्ट क्वेश्चन कर ले भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बता दे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, फटाफट। चलो सरबजीत डोमेन बताओ, रेंज क्या होगा, गलती कर गई, 0 y ले लो, y इक्वल टू 1 बाई एक्स, तो x इज इक्वल टू 1 बाई वाई, y पे क्या कंडीशन, नॉट इक्वल तो यहाँ भी तो वही होगा ना, समझी, 0 अलाउड नहीं होता है, क्योंकि अगर x, हाँ एक्चुअली ये एक बेसिक ग्राफ है, आप याद कर लो, लर्न इट, इसको हम कहते हैं हाइपरबोला, कौन बोला, हाइपरबोला, कौशल सर ने बोला ये हाइपरबोला, ऐसे ध्यान रखना, हाइपरबोला ऐसा होता है जी, ये देखो, जब आप x का वैल्यू इंफिनिटी दोगे तो 1 बाई इंफिनिटी हो जाएगा 0, यानी ये 0 की तरफ बढ़ेगा, जब आप x का वैल्यू 0 दोगे तो इट विल टेंड टुवर्ड्स इंफिनिटी। उसी तरीके से चूंकि ये एक ऑड फंक्शन है, इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट दी ओरिजिन, तो आप इधर बनाओ, नेक्स्ट इसका जो ये वाला पोर्शन होगा वो इस तरफ होता है, मतलब द मोमेंट यू सी 1 बाई एक्स, नो दिस ग्राफ शुड कम टू योर माइंड, इधर स्केच, रफ स्केच आपको आना ही चाहिए, यू कैंट से कि सर आई एम लाइक टू वीक इन मैथ्स, आई डोंट नो द रफ स्केच, कम ऑन, आप क्या क्या पढ़ रखे हो लाइफ में, ग्राफ तो बहुत सिंपल चीज है। सो इसका ग्राफ आप ध्यान में रखना, क्योंकि जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो बेसिक ग्राफ को हम लोग यूज करेंगे। क्लास इज ओवर,
बस एक होमवर्क ले लो, देखो होमवर्क, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, fx इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस x बाय 1 माइनस x, ठीक है। डोमेन निकालना है। दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत धीरे ही चल रहे हैं, आज बेसिक समझ में आ गया, अगले दिन से 2-4 कंसेप्ट्स और हैं एंड देन वी विल गो फॉर द एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ठीक है। चल होमवर्क कर लेना, बताना मुझे आंसर। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।